الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من يؤتي الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى أما بعد فقد قال الله تعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال الله عز وجل في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال الله تعالى في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء الحسنی کے معلوماتی سفر میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ان گنت ہے. جیسے کہ دعا کے الفاظ ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ کے ہر اس نام کے ذریعے سے جو آپ نے اپنے خود کو دیے ہیں
اور آپ نے اپنے کتابوں میں نازل کیا ہے اور آپ نے اپنے مخلوق کو سکھایا ہے اور آپ نے علم غیب میں اپنے پاس رکھا ہے۔ ان دعاؤں کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام لامحدود یعنی انفینٹ ہے، لیکن ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے 100 سے زائد نام پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ان گنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو جاننا اسی لیے ضروری ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 کم ایک کو جاننا اور ان کو محفوظ رکھنا انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل ہونے کا باعث ہے۔ للہ تسعۃ وتسعون اسما من حفظها دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ یہ حدیث کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان ناموں کو محفوظ رکھتا ہے وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے صفت یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو جان لیں۔ کچھ نام ایسے ہیں جسے اسم اللہ الاعظم کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفت مبارک ہے، پیارے ہے اور عظیم ہے۔ حدیث کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام خاص ہے، ایسے ہے جو عظمت میں دوسرے ناموں سے بڑھ کر ہے۔ ان ناموں کو اسم الاعظم کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ عظمت والے نام۔ The greatest name of Allah, the grand name of Allah۔ ان ناموں کے ذریعے اللہ سے سوال کیا جائے اور ان کے واسطے سے دعا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ آئیے ہم صحیح حدیث کے ذریعے اور ان کے روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے مبارک نام ہیں جنہیں اسم الاعظم کہا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3857، جس میں عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا میں یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا: اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے اللہ سے اسم اللہ الاعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے۔ جب اسم الاعظم کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے تو اسے عطا کیا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث نمبر 3858 سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ ایک شخص کو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسم الاعظم کے ذریعے سے دعا مانگی تو دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں القاسم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم الاعظم وہ ہے جس سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ اسم الاعظم قرآن کی 3 سورتوں میں آئے ہیں: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں آتا ہے: اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 2 میں آتا ہے:
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, और सूरह ताहा आयत नंबर 111 में आता है व अनतिल वुजूहु लिल हय्यिल कय्यूम व क़द खाब मन हमल ज़ुल्मा। मुफस्सिरीन इस हदीस के रोशनी में और आयतों के जरिए ये ख्याल रखते हैं अल हय्युल कय्यूम इस्मुल्लाहिल आज़म है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3855 में अस्मा बिन्त यजीद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें आज़म इन दो आयतों में है। ये आयत कौन सी है? सूरह बकरा की आयत नंबर 163 जिसमें आता है व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, और सूरह आल इमरान में आता है आयत नंबर 1 और 2 में अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इन दोनों आयतों में हमें ये मुबारक इस्म मिलते हैं अल हय्युल कय्यूम, अर रहमान और अर रहीम। अगर हम इन चारों सही हदीस पर गौर करें तो इनमें अल्लाह ताला के 11 मुबारक नाम के जरिए इसका जिक्र आता है, जैसे अल्लाह, अल वाहिद, अल अहद, अस-समद, अल मन्नान, बदिउस समावाति वल अर्द, जुल जलाली वल इकराम, अल हय्युल कय्यूम, अर रहमान और अर रहीम। बहुत से मुफस्सिरीन का ख्याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्मुल आज़म के बारे में ये बताया कि ये अल्लाह ताला का वो अजीम और मुबारक नाम है जिसके जरिए दुआ की जाए तो वो कबूल हो जाती है। स्पेसिफिकली नाम का जिक्र नहीं किया, इसीलिए कौन सा इस्म इस्मुल आज़म है ये हमें नहीं पता चलता, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। इन चारों हदीस के जरिए हम अल्लाह ताला के जो 11 मुबारक नाम मिलते हैं, मुफस्सिरीन के मुताबिक इनमें इस्मुल आज़म होने का ज्यादा पॉसिबिलिटी यानी इम्कान है। इस्मुल आज़म के बारे में मुफस्सिरीन की राय यानी ओपिनियन बयान करते हैं। पहला ओपिनियन ये कि मुजाहिद जो ताबई है और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के स्टूडेंट है, उनका ये ख्याल है कि जुल जलाल वल इकराम इस्मुल्लाहिल आज़म है, और इस ओपिनियन के सपोर्ट में हदीस बयान करते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला की पनाह और हिफाजत में आ जाओ जुल जलाली वल इकराम के जरिए से, यानी सीक रेफ्यूज इन अल्लाह बाय जुल जलाली वल इकराम। फिर दूसरा ओपिनियन ये है कि इमाम नववी, इमाम शाफी, इमाम हनफी का कौल ये है रहिमहुल्लाह और बहुत से उलमा का मानना है कि अल्लाह के ये इस्मुल आज़म है। इसी तरह कुछ मुफस्सिरीन और उलमा का ख्याल है कि कुरान में ज्यादातर दुआएं रब्बना से शुरू होती है, तो उनके मुताबिक कुछ रब ये इस्मुल आज़म है, जैसे कि दुआएं जो शुरू होती है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, और रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इन दुआ के जरिए से ये नतीजा निकलता है कि अर्रब इस्मुल आज़म है। और भी काफी सारी दुआएं रब्बना से शुरू होती है, तो अर्रब इस्मुल आज़म है, ये कुछ मुफस्सिरीन का कहना है। फिर चौथा ओपिनियन ये कि इब्न तैमिया और दूसरे स्कॉलर्स का ओपिनियन है कि अल हय्यु अल कय्यूम इस्मुल आज़म है। उलमा का ये भी ओपिनियन है कि हालात और हाजात के मुताबिक
इस्मुल्लाह के जरिए से अल्लाह ताला को पुकारे और पुकारा जाए तो अल्लाह उसके दुआ को कबूल करता है। बेहतरीन ये है कि हम सारे नामों को याद कर लें। इन सारे नामों को हम याद कर ले और इन नामों के जरिए अल्लाह से दुआ मांगे। जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाहुल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद या मन्नानु या बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यू या कय्यूम। ये दुआ मांगे जो 11 नामों को इंक्लूड करती है। तो इस्मुल्लाहिल आज़म जानने के बाद इसका भी ख्याल करे कि सिर्फ ज़बानी पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक टंग की एक्सरसाइज है। यकीन के साथ, दिलों की गहराई के साथ, ईमान के तकाजे के साथ नामों को समझना जरूरी है। कौन है अल हई, कौन है अल कय्यूम को जान ले। अल्लाह को जानना और रब का एहसास और रहीम और रहमान पर यकीन तहे दिल से, ईमान से होना जरूरी है। जब हम अल्लाह ताला की सिफत को जान लेते हैं तो हमें उस सिफत से यकीन आता है। फॉर एग्जाम्पल, मसलन अगर हमें कुछ तंगी, परेशानी, रिस्क में महसूस होती है तो हम अल्लाह ताला जो अर्रज़्ज़ाक़ है इससे पुकारे तो अल्लाह ताला, यकीन के साथ पुकारे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को सुनते हैं, कबूल करते हैं और हमें वो अता करते हैं जो हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। जैसे अल्लाह ताला अर्रज़्ज़ाक़ है, उससे हम दुआ मांगे इन्नल्लाह हुव्वर-रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, कि अल्लाह ताला के पास ही वो पावर है कि अल्लाह ताला हमें रिस्क अता कर सकता है। तो हम ये यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह ताला तू अर्रज़्ज़ाक़ है, तू हमें रिस्क अता कर सकता है, तू हमें रिस्क अता कर। या हमें जब महसूस हो कि हमारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, हमें कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा और हम फंसे हुए हैं, तो अल्लाह ताला को पुकारे या फत्ताहू या फत्ताहू, अल्लाह ताला हमारे दरवाजे को खोल दे। या हमें अल्लाह ताला अर्रहमान है, हमें अल्लाह ताला की रहम की ज़रूरत है, हमेशा हर इंसान को ज़रूरत है, तो अल्लाह को पुकारे अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह तू रहम करने वाला है, हम पर रहम कर। हम किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमें निकाल। तो अल्लाह ताला यकीन के साथ जब दुआ मांगी जाए, डेप्थ ऑफ योर हार्ट जब हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर दुआ को कबूल करता है और ईमान भी होना ज़रूरी होता है। जान ले कि अल्लाह के सिवाय कोई इला नहीं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं। मुझे अल्लाह की ज़रूरत है, हमेशा है और हमेशा रहेगी। मुझे अल क़य्यूम की मदद चाहिए और हमेशा रहेगी। हाथ उठाए और कहे या रब, या अल्लाह, या मन्नान, या ज़ल जलाली वल इकराम, खुशू के साथ, खुजू के साथ, ईमान, इखलास और तवक्कुल के साथ। और फिर देखिए उसका इफेक्ट। यकीनन अल्लाह अल वहाब है, हमसे मोहब्बत करता है, हमें सुनता है, वो अस्समी है, हमें देखता है, वो अल बसीर है। अल्लाह को हमारी आजिज़ी, इनकिसारी और अमल चाहिए। दीन के समंदर, दीन एक समंदर है, दीन के समंदर से हम जो जानते हैं वो एक बूंद के बराबर भी नहीं या एक बूंद बराबर है। हमें चाहिए दीन को समझे, उसे एक्सप्लोर करे, गौर व फिक्र करे, उस पर रिफ्लेक्ट करे। जब हम अल्लाह को जान सकते हैं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की सिफत क्या है, अल्लाह की पावर क्या है, अल्लाह असमद है, अल्लाह हमें जानता है और अल्लाह जैसा कोई भी नहीं। जैसे सूरे इसरा आय नंबर 110 में आता है, कुल दुअल्लाह अव दुअर रहमान,
अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। अल्लाह को अच्छे अच्छे नामों के जरिए पुकारे, कुरान को पढ़ते वक्त इन नामों पर रिफ्लेक्ट करे। हर 2-3 आयतों के बाद हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की सिफत बयान होती है कि अल्लाह ताला अल हमीद है, अल्लाह ताला अलीमुल खबीर है, अल्लाह ताला इल्म का जानने वाला है, उसका इल्म कंप्लीट है, उसका परफेक्ट नॉलेज है और खबर रखने वाला है, समीउन अलीम है। अल्लाह ताला इल्म के साथ साथ हमें सुन रहा है। जब हमें इन नामों का, सिफतों का यकीन हो जाए और जब हम आयतों को पढ़ते हैं तो हमें एक नया यकीन आता है। तो हमें जरूरी है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त इन नामों के जरिए अल्लाह को पुकारे, नामों के जरिए अल्लाह को पुकारे। अल्लाह अल जमील है और मोहब्बत है जमाल से। अल्लाह अल अफू है, मोहब्बत करता है माफ करने वालों से। तो ऐसी सिफत हम में भी लाए कि हम दूसरों को माफ करें। अल्लाह ताला अल गफूर है, मगफिरत को पसंद करता है। जब हमें इन नामों का एहसास रहेगा तो हमारे ईमान के दर्जात यानी लेवल में इजाफा होगा। अल्लाह ताला की तमाम सिफत अहसन यानी बेहतरीन और मुकम्मल यानी कंप्लीट है। हमें चाहिए कि हम अस्माउल हुस्ना को जानें, गौर करें। इससे हमें अल्लाह ताला की मारिफत और पहचान होगी। हमारे पैदाइश का जो मकसद है, हमें क्रिएट करने का जो मकसद है, बंदगी और इबादत है। जैसे सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में आता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इसीलिए हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए और उसके अहकामात पर चलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा इसलिए किया ताकि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, है ना। तो हमारे लिए जिंदगी में जो मकसद है, जो हमारे जिंदगी का मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और ये अल्लाह ताला के इस्मुल्लाहिल आज़म को जाने, द ग्रेटेस्ट नेम्स ऑफ अल्लाह को जाने और अल्लाह ताला को इन नामों के जरिए पुकारे कि अल्लाह ताला हमें हम अल्लाह ताला से जब पुकारे तो यकीनन वो यकीन के साथ पुकारे कि अल्लाह ताला हमारे दुआ को सुन रहा है और हमारी दुआओं को कबूल करता है। और जैसे हमने हदीस के जरिए ये जान लिया कि जब इस्मुल्लाहिल आज़म से पुकारा जाए तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। तो यकीन रखे कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।